biscuits. Cookies तो मैंने Hi. Hi. Can Hello. we at least Hello. now Didi. try and switch on our cameras? It's evening and I'm sure we are not looking the way we look in the mornings. So we give an excuse to people who are not in IST time, so that's okay. That's okay. It's 11:30 and I'm still Yeah, so waiting that's for you. okay. You're allowed to be in your night dress. We'd still love you as much. Thank you. And in my bed. Yeah. People in Singapore, people in Japan, people in Australia. So you're allowed to actually, because it's late there ahead of us. Yep. Yeah. Otherwise, we can try and at least in the evening put our cameras on. I think it'll be really nice. And really, I mean, like none of us judge anyone, even if we are not looking. You know how I come in the morning. I'm straight from the bed. I'm here, to take the session. So, Ma'am, you look gorgeous. You look gorgeous. but You- सुबह हम ऐसे ही आते हैं बिल्कुल raw, Ma'am, absolutely. अभी तो double gorgeous. Super gorgeous. सुबह भी बहुत Exactly. ही. Yes. I had a fun day. Especially your Went- hair. Style. Yeah. Wow. लगता है parlor से आए हो. Shampooed today. Yeah. Yes. So I had an absolute fun day in my own way. I'm celebrating and I'm still writing blessings. I'm just back from a nice meal and Wow. in Hoskas village. So it was super good. Had some nice, like a regional cuisine. So yeah. Yeah, all right. So we'll just, I think, Soumya, we'll start. Amla, you are going to ask us the questions. Have you received some? So we can Yeah, start ma'am. from last times, yeah. Yeah, पिछली ma'am, बार, sure. हाँ, पिछली बार वाले पहले. Okay, ma'am. Starting with the first question from the 10th question. So for health, if we write short affirmation, that is, thank you for my perfect health, will it cover even the areas where they want to heal, Yeah. like say pancreas, leg pain and shoulder? And if they write this affirmation, thank you for my perfect health, in any of the practice, will that work? Absolutely. This is what you need to write. Thank you for my perfect health. If you want to write it 21 times, 21 is 2 plus 1 is 3. So that's a number depending upon your time availability. And अगर मुझे इसको हिंदी में समझाना है, because I think बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि मैं इंग्लिश बहुत बोलती हूँ. सो ये जो एफर्मेशन है, अगर कहीं स्पेसिफिक जगह पे पेन हो रहा है और आपका ये क्वेश्चन है कि सिर्फ थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ लिखने से क्या वो पेन ठीक हो जाएगा, शोल्डर का या नीज का पेन या कुछ और कहीं पे पैनक्रियास में प्रॉब्लम है वहां पे, हाँ हो जाएगा. थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ ये एक अम्ब्रेला वर्ड होता है और सारे ऑर्गन्स एंड सारे पेन इसी के नीचे आते हैं. सो यस, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ 21 टाइम्स आप लिख सकते हो, 55 टाइम्स लिख सकते हो, 90 लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो, 333 लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है. और अपने मन में सिर्फ लिखना ही जरूरी नहीं होता है, अपने मन में भी लगातार अपने आप को जो ऑटो सजेशन होती है जिसको हम सेल्फ टॉक बोलते हैं, डोमिनेंट सेल्फ टॉक हमेशा हमारी हकीकत में बदल जाती है. सो डोमिनेंट सेल्फ टॉक अगर आपकी है, आई एंजॉय द बेस्ट ऑफ हेल्थ, thank you for my perfect health, I'm really enjoying the best of health, my health is so good, I love my health. मिरर के सामने जितनी भी बार शीशा सामने आता है, बाथरूम में जाते हो या सेल्फी कैमरा खोल सकते हैं हम, और शीशा जितनी बार सामने आ रहा है उतनी बार ओ वाओ आई लव माई हेल्थ, आई एम सो हैप्पी. अगर ये वाले ऑटो सजेशन रहेंगे, 101% एक महीना भी नहीं लगेगा हेल्थ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने में. या Okay, ma'am. Thank you. Next one is there are two questions on the same line. It's regarding finding a perfect life partner. So how to attract the perfect life partner was one question, and another question is bit detailed. I'm a 28-year-old. I'm clear that I want to settle down for companionship. I have full faith that I will get the best. I will attract and not chase. So the confusion is that, as suggested by Mani, should I go make an account on matrimonial site or just raise my frequency to attract? Or should I go out and start searching? I personally find the process and how to be shadi ready. I look forward to companionship but still feel like I'm not ready.
Okay. Can there be some blockages? या सो फर्स्टली दैट हमेशा अपने आप को मतलब जो आपकी ड्रीम लिस्ट है आप उसमें ये गोल डाल दो दैट थैंक यू फॉर माई परफेक्ट पार्टनर। मैजिक बुक के डे 0 में परफेक्ट पार्टनर की सारी क्वालिटीज भी लिखने को बोला था। उसमें लिखा हुआ था बहुत क्लियरली कि जो भी आपका ड्रीम है जो भी आपका गोल है आप उसको बहुत क्लियरली लिखिए अपना, है ना, डे 0 में जो हमने डे बिफोर यस्टरडे किया था। तो उसमें सारी क्वालिटीज आप अपने पार्टनर की लिख लो कि वो उसकी हाइट 5'10" के ऊपर होनी चाहिए और वो बहुत गोरा चिट्टा होना चाहिए, जो भी आपको चाहिए, मतलब सबके सबके अपने अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। वो बहुत मुझको प्यार दे, मेक्स मी फील लव्ड एवरी सिंगल डे ऑफ माय लाइफ एंड यू नो लाइक इज वेरी रिस्पेक्टफुल, आवर रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन लव एंड ट्रस्ट। उसको खाना बनाना आना चाहिए, हम इक्वल इक्वल पार्टनर्स होने चाहिए हर चीज में। जो भी है उसको वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना चाहिए, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी इनकम इससे ज्यादा होनी चाहिए, जो भी लिखना है, ठीक है, इसमें कोई कमी मत रखना आप। वो डिटेल अगर आपने डे 0 में लिख दी, अब उसकी सारी क्वालिटीज आपने लिख दी, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत लविंग एंड केयरिंग होना चाहिए, उसको खाना बनाना आना चाहिए, वो मेरे पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करे और हमारी रिलेशनशिप लव एंड रिस्पेक्ट की तरह होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद अब आप वैसे इंसान बनो पहले, ठीक है, तभी उसी फ्रीक्वेंसी में आप रहोगे कि वैसा इंसान आपके पास आएगा। बिकॉज कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो जिस तरह से आप होते हो आप अपने सामने वाले एनवायरनमेंट में सारे लोग वैसे ही अट्रैक्ट करते हो जैसे आप खुद होते हो। मतलब कहीं हमारे अंदर ही वो चीज होती है जिसके कारण सामने वाला इंसान वैसा होता है ना। सो अब आप वैसे इंसान बनने की कोशिश करो और बहुत जल्दी पार्टनर आ जाएगा। बिकॉज डे 13 से लेके डे 22 तक हम अपनी ड्रीम लिस्ट पे ही काम कर रहे होते हैं। और सोने के पहले जब अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं हम, जिस रात को सोने के पहले ये वाला हमेशा सीड डाल के दो, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट पार्टनर एंड फील दैट यू बीइंग लव्ड, you know, whichever way. So yeah. Okay, ma'am. और वो जो Uh, मैंने 1 सेकेंड सौम्या, सो मुझसे मिलने Okay, के ma'am. लिए जब मुस्कान आई थी मेरे ऑफिस, तो हम मेरे ऑफिस के साथ वाले कैफे में बैठे हुए थे। वहां पे उन्होंने भी मुझसे यही क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने मुस्कान को बहुत सारी पॉइंट्स बताए थे। वो पॉइंट्स मेरे पास हैं, मैं अभी ग्रुप में पोस्ट कर देती हूँ, ठीक है। वो जितने भी पॉइंट्स मैंने मुस्कान को बताए थे, मुस्कान ने किसी और को बताए और उन्होंने मुझे आज भेजे और उन्होंने बताया कि मुस्कान ने मुझे ये सब भेजा हुआ है और मैं वो आपको अभी भेज देती हूँ, अभी भेज देती हूँ सेशन के बाद। उन्होंने आज ही मुझे भेजा था जिनको मुस्कान ने भेजा था। और अगर मुस्कान आप कॉल पे हो तो आप प्लीज जो आपने रिकॉर्ड करके भेजा था अपनी आवाज में, वो दो है वो रिकॉर्डिंग्स, वॉइस मैसेजेस, उसको आप इस पे डाल देना। या Okay, ma'am. नेक्स्ट इज प्लीज बताइए कि अगर कोई सब्जेक्ट में वीक है, पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो उसमें हम मैग्निफिसेंट आउटकम कैसे लगाए? वो मैग्निफिसेंट आउटकम वाला है ही नहीं। मतलब पढ़ने के पहले मैग्निफिसेंट आउटकम आप कर सकते हैं, लेकिन वो मैग्निफिसेंट आउटकम होता ही नहीं है। अगर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो पहले तो रीजन जाने। कहीं हो सकता है कि कॉन्फिडेंस है या स्कूल में बच्चे को बहुत, मतलब एज क्या है, बड़े बड़े इंसान के लिए या हमारे लिए है? मतलब अपने बच्चे के लिए वो पूछ रही है, और पीपल लाइक अस, लाइक वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग द बुक्स एंड ऑल दैट। फॉर बच्चे के लिए शायद, मैम। अच्छा, छोटे बच्चे के लिए है। तो छोटे हाँ। बच्चे का पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, आप बच्चे के साथ बैठ के पहले उसको समझाओ, है ना। और फिर उसके बाद बच्चे बहुत रिसेप्टिव होते हैं। तो अगर हम बच्चों के साथ बात करेंगे, उनके लिए अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ कि आप 3 बजे स्कूल से आते हो और रात में 9 o'clock पे सोते हो। आप उनके लिए पूरा टाइम टेबल बताओ कि बेटा आप बताओ आपको क्या क्या चीजें करनी अच्छी लगती है। तो बच्चा ये बोलेगा, ये बोलेगा, ये बोलेगा, ये सब पसंद है, मुझे टीवी देखना पसंद है, मुझे बाहर फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद है, मुझे कंप्यूटर गेम्स खेलने हैं। तो आप उसके लिए टाइम टेबल बना के आप उसकी 2 घंटे या 90 मिनट्स की विंडो बना दीजिए मंडे टू फ्राइडे, जिसमें वो पढ़ाई करेगा। और उसके बाद जो पेरेंट है वो उनको लिखना होगा। सो दिस इज हाउ आई लाइक आई हैव ऑलवेज बिन राइटिंग फॉर माई चिल्ड्रन दैट थैंक यू यूनिवर्स, उनका नाम लेके अपने बच्चों का, दैट माई चिल्ड्रन आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल and they know their duties well and they have very good habits and like they attract people of good influence in their lives, है ना, because they were teenagers. Of course now they are pretty much grown up, but मैं तब से ही लिख रही हूँ क्योंकि बुद्धिज्म में बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो उसमें हमेशा से ये वाला था।
So you write this, that he is very good at studies, and जो भी आपका बच्चा है, and he, you know, like really attracts a lot of appreciation from all his teachers, and his grades are constantly improving, and he's so responsible, eats healthy food and respects his elders and loves the youngers, and he's such a wonderful person. He always attracts praises of everyone. सबकी तारीफ वो अपनी तरफ, मतलब सबकी तारीफ मिलती है उसको, इतना अच्छा इंसान है। टीचर्स बहुत तारीफ करते हैं, हर पीटीएम में टीचर्स उसके बारे में कुछ बोलते हैं। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, दिस इज अ सिंपल थिंग। आप देखोगे बहुत जल्दी। मेरा जब मैंने लिखना शुरू किया था तो 2 महीने में जमीन आसमान का फर्क आ गया था मेरे बच्चों के बिहेवियर में। Okay, ma'am. So this one is like, I want to know where my husband and my happiness and future lie. 15 years we have lived in one city and they are not happy over there. And am I destined to be elsewhere? If yes, where? आप सिटी से खुश नहीं है, आप अपने आप से खुश नहीं है। सिटी का कोई आप सिटी को दोष नहीं दीजिए, आप अपने आप से खुश नहीं है। जब मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि जब हमको अपनी ही कंपनी पसंद नहीं आती है ना, तो हमें कहीं पे भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो पहले तो सॉलिट्यूड में टाइम, जैसे रॉबिन शर्मा की किताब में मैंने पढ़ा था कि 4 चीजें होती है नॉर्मली जो हमको लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए करनी। फर्स्ट ऑफ कोर्स इज माइंडसेट। माइंडसेट हमारा प्रोग्रेसिव होना चाहिए, माइंडसेट हमारा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, माइंडसेट हमारा ग्रोथ की तरफ होना चाहिए कि मैं अपने आप को कैसे इंप्रूव करूं और क्या कर सकती हूँ, हाउ कैन आई बिकम अ बेटर पर्सन। फिर दूसरा होता है हेल्थ सेट। हेल्थ सेट के लिए आप क्या क्या कर रहे हो, क्या आप माइंडफुली खाते हो, सोच समझ के खाते हो, आप बहुत सारा पानी पीते हो। हेल्थ के लिए क्या आप रोज एक्सरसाइज करते हो, हेल्थ सेट है ना। सो माइंड सेट हो गया, हेल्थ सेट हो गया। फिर होता है हार्ट सेट। हार्ट, दैट मीन्स अ हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। क्या हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड है कि हमेशा कंप्लेन ढूंढते रहते हैं। अपनी सिटी के लिए कंप्लेन करना, तो वो सिटी आपको कभी वापस अच्छी चीज नहीं देगी, है ना। जैसे अगर मैं गोवा जाती हूँ तो वो एक्चुअली गोवा मुझे बुलाता है, मैं थोड़ी जाती हूँ वहां पे। लाइक अगर मैं किसी कंट्री गई हूँ, सपोज मैं ऑस्ट्रेलिया गई हूँ, तो वो ऑस्ट्रेलिया विल कॉल मी। आई एम नॉट, ऑफ कोर्स, लाइक मेरे डिजायर लिस्ट में कई बार होता है, कई बार नहीं होता है, बट वो सिटी हमको बुलाती है, ठीक है। और अपने ही शहर के बारे में आपको विश्वास नहीं आएगा, आज ही आपने वाला ये वाला क्वेश्चन है और आज ही मैंने अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल में इतना ज्यादा दिल्ली की तारीफ की है, क्योंकि वो मेरा शहर है और मुझे सब कुछ दिल्ली की वजह से मिल रहा है। यहाँ पे मेरा जो खाना पीना है वो यहाँ की सब्जी मार्केट से आ रहा है, जो मेरी ग्रोसरीज हैं वो दिल्ली से आ रही हैं, जो मेरा स्टाफ घर में काम करता है वो सारा दिल्ली बेस्ड है। जो रोड्स हैं जिन पे मैं चलती हूँ वो दिल्ली की है, गाड़ी में मेरा दिल्ली का नंबर है। सो इट इज नॉट दैट लाइक अपने शहर की कंप्लेन करना, इट इज समथिंग आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, बट मे बी हो सकता है आप न्यू मेंबर हैं। अगर कोई ओल्ड वाले करते तो मैं अलग से उनको अभी फोन करके अच्छे से सुनाती। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ये कि अपने ही शहर के बारे में बुरा बुरा बोलना, जो आपको इतना कुछ, मतलब सारी सब कुछ हैप्पीनेस और जो भी है, जब तक टिल द टाइम कौन यू है? डोंट लाइक द सिटी यू आर इन, यू विल नॉट नो खुला अदर सिटी विल खोलो कॉल यू, है ना। कंप्लेनेंस को खोलो। कोई शहर नहीं बुलाना चाहता है अपने पास। रिया, आप और सौम्या को होस्ट हैं। सो आपको कोई भी शहर नहीं, जब तक आप इन वेयर आर यू राइट नाउ, इफ यू आर नॉट इन लव विद दैट प्लेस, नो अदर कंट्री और सिटी इज गोइंग टू कॉल यू, ठीक है। सो प्लीज स्टार्ट राइटिंग ग्रैटिट्यूड फॉर योर सिटी, आप जहां पे भी रहते हो। अच्छा क्या नहीं लग रहा, इतना कुछ मिला आपको, आप जो खाना खा रहे हो वो आप ही की तो सिटी से मिल रहा है आपको। वहीं के 2 किसान हैं जो क्रॉप्स उगा रहे हैं, आप उन्हीं का, वही आपके नेबर्स हैं। आपका घर इतने सालों से जहाँ पे आप सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ रह रहे हो वो उस शहर में बना हुआ है, उसी शहर के ग्रोसरी स्टोर से आप, वहीं पे आपकी बैंकिंग है ना। सो यू हैव टू प्लीज स्टार्ट राइटिंग, चेंज योर माइंडसेट। सो माइंडसेट, हार्ट सेट, सोल सेट एंड हेल्थ सेट, ये 4 चीजें होती है, चारों पे वर्क करना पड़ता है। तो इसीलिए अपना माइंडसेट अगर थोड़ा सा कंप्लेनिंग वाला हो रहा है, आप एक कंप्लेन के लिए 10 ब्लेसिंग्स होती है। अब आप देखिए आपको कितनी कितनी ब्लेसिंग्स लिखनी है अपने शहर के लिए, सब ठीक हो जाएगा। जिस दिन आपको अपने शहर से प्यार होगा उस दिन बहुत सारे शहर, बहुत सारी कंट्रीज आपको बुलाना शुरू कर देंगे, और ये ऑटोमेटिक होता है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। जस्ट फॉल इन लव विद वेयर यू आर राइट नाउ, दैट इज इट। तभी हम बार बार बोलते हैं ना, स्प्रिंग इज वेयर यू स्टैंड, जहां आप खड़े हो उसके नीचे स्प्रिंग है। स्प्रिंग चेस करने के लिए आपको कहीं और नहीं जाना पड़ता है। So please fall in love with your city so that the world becomes your home. Otherwise, no other country will call anyone who's a complainant, no? So this is what we learn together. Hanji, Soumya. Okay, ma'am. Next one
it's regarding one of their daughter. They said there is a lot of change in her, but she never appreciates anyone, mostly always in criticism. They also want her to settle down in her family life. So what should they do? Acha, grown up daughter. हाँ, Okay. grown up daughter. Well, doesn't matter. There is something in the mother's or father's life that needs to change so that the outer environment changes. Please talk to the universe. Keep writing blessings, okay, for her. Every day, 5. Every day write 5 blessings. उसकी फोटो सामने रखिए आप अपनी बेटी की और रखिए आई एम सो ग्रेटफुल फॉर हर ब्यूटीफुल स्माइल, you know, I'm so grateful that, you know, so lovingly she surprised me on my birthday by getting a cake for me. I'm so grateful that, you know, she completed her school and college with such good grades or whatever grade she got. I'm so grateful for this quality. Maybe she's a very good singer or whatever, so that she's a very good singer. I'm so grateful that she's so loyal towards her friends. रोज 5 blessings आप लिखिए और एक बार सुबह लिख लिया आपने, दिन में 2 बार और उसकी फोटो निकाल के बोलिए. उसका नाम सपोज सौम्या है तो आपको बोलना है थैंक यू सौम्या. फिर उसका रात को दोबारा से फोटो निकालिए और बोलिए थैंक यू सौम्या. ठीक है, और आप ये करते रहो, आप देखना मिरेकल हो जाएगा आपकी बेटे की जिंदगी में. हाँ जी. Okay, ma'am. I am unable to manifest the financial success in my business in spite of the practices and affirmations. That means आपकी पैसे बस की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है ना. अगर पैसे की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो फिर फाइनेंशियल सक्सेस एफर्मेशन से नहीं आती है. और ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ. तो एफर्मेशन आप करते ही रहो दैट आई एम अ मनी मैग्नेट, माई इनकम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, I prosper by day and night, I receive money from multiple sources of income with ease. ठीक है, ये आप लिखते रहिए. इसके अलावा जब भी आप अपने जेब से पैसा निकालें, ठीक है, तो हमेशा ग्रैटिट्यूड के साथ देना है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर एनर्जी आप बहुत अच्छी दे रहे हो पैसा खर्च करते वक्त, तो वो पैसा उस एनर्जी को मल्टीप्लाई करके वापस आपकी जिंदगी में आएगा और बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करके. तो इसलिए आप अपनी फ्रीक्वेंसी पे वर्क करो. हो सकता है आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत डिप हो रही हो और पास्ट में पैसे जहां जहां पे खर्च हुए हैं, जो हमारी प्रैक्टिस नंबर 4 है, 5 है, डे 5 जो है, वो वाली प्रैक्टिस आप लगातार कीजिए. ठीक है, जिसमें आपको एक नोट लेना है, 10 रुपए का, 20 रुपए का, कैसा भी नोट, उस पे व्हाइट कलर का एक शीट चिपकानी है सामने वाली साइड जहां गांधी जी की फोटो होती है अगर आप इंडिया में हैं तो. और उस पे लिखना है that I'm grateful for all the money I have been given throughout my life. और बचपन से लेके अभी तक जहां पे भी पैसा खर्चा हुआ है वहां उस आपको नोट वो हाथ में पकड़ के आपको थैंक यू बोलना है और वो पढ़ना है. थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ. और जितने भी लोगों ने आपको अभी तक पैसा दिया है वो उसके लिए आप थैंक यू बोलिए, क्योंकि हो सकता है आपके मन में ग्रीड है पैसे की. जिन भी लोगों के पास पैसे के लिए ग्रीड होती है, ठीक है, वांट होना, पैसे के साथ रिश्ता अच्छा होना, एवरीबॉडी लव्स मनी. बट एक जो ग्रीडीनेस होती है ना कि मैं कहाँ से बचाऊं, मतलब अगर किसी को देना है सपोज आपको 10 रुपए, तो आप उससे 10 रुपए के लिए बार्गेन कर रहे हो कि मैं 8 दे दूं, तो आप 2 रुपए बचा रहे हो. 2 रुपए घर में इधर उधर रखे हुए होते हैं, हमको कई बार पता भी नहीं होता. ठीक है, लेकिन 2 रुपए के पीछे आपने अपनी इतनी एनर्जी अपनी खराब कर रही होती है. सो ये जो सारी चीजें होती है ना, पैसा बल्कि दो, ज्यादा दो आप लोगों को. Isn't it? There is no free lunch in the world. हर चीज अगर किसी ने गिफ्ट दिए तो बहुत खुश मत हो, गिफ्ट मिली है, उसी प्रोपोर्शन में आपको वापस भी देना है. ठीक है, सो देयर इज नथिंग लाइक you're just taking and you're not giving anything. जो भी आपको पैसा दे रहा है आप उससे ज्यादा वैल्यू लोगों को दो. ये चीज शुरू से मेरे सारे मेंटर्स ने सिखाई है. मनी की फ्रीक्वेंसी अपनी अच्छी रखो. आज से आप ये करना शुरू कर दो कि जहां पे भी आपको 10 रुपए देने हैं ना, आप वहां पे 15 देना शुरू कर दो. जहां आपको 900 देने हैं वहां पे आप पूरे 1000 रुपए दो. नहीं है ना, फिर भी दो, मतलब कम पैसे हैं आपके पास, आप फिर भी दो. ठीक है, आप देखना किस तरह से पैसे आपके पास वापस आएंगे. और जब आप दे रहे हो तो बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करके कि जिस भी इंसान को आप पैसे दे रहे हो, रिक्शे वाले को, ग्रोसरी वाले को, सब्जी वाले को, फ्रूट्स वाले को, ठीक है,
तो उनको कि उनकी जिंदगी में आपके पैसे जाके बहुत मल्टीप्लाई हो और उनकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आ जाए, प्रोस्पेरिटी आ जाए, उनके माँ बाप बहुत अच्छी हेल्थ एंजॉय करें, वो हर चीज को अफोर्ड कर पाएं, अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दें, उनको खूब कंफर्ट्स में रखें, ठीक है। इतनी ब्लेसिंग करके आप पैसे निकालना शुरू करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास पैसे, मतलब आप देखना कि आपके पास बारिश होने लग जाएगी पैसे से, और ऐसी ऐसी जगह से पैसे आएंगे जहां जहां आपने सोचा भी नहीं था, आपका दिमाग भी नहीं गया था, आपको पता भी नहीं होगा कि वहां से पैसे आने का कोई स्कोप है, ठीक है। और तब एफर्मेशन काम करती है। अगर मनी की फ्रीक्वेंसी लो होती है और फिर आप एफर्मेशन लिखते हो तो उसका कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। लेकिन मनी की फ्रीक्वेंसी अगर आपकी अच्छी होती है, फिर आप अपने एफर्मेशन जब लिखते हो तो देखना आपके पास कितनी बारिश होने लग जाती है। और पैसे को खर्च होना बहुत पसंद है, पैसे से हम सेलिब्रेट करें, वो पैसे को बहुत पसंद है, ठीक है। पैसे को बहुत पसंद है कि उसको ब्लेसिंग मिले जिससे कि वो जाए और वापस आए, क्योंकि ये सर्कल चलता है, इट्स अ साइकिल। सो दिस साइकिल, अगर पैसा नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब है आप अभी भी लैक और ग्रीड की फ्रीक्वेंसी में हो, कि बस बच जाए, मेरे पास कहीं से पैसा आ जाए, देना नहीं है, बस आ जाए, है ना। नॉलेज भी मिल जाए, पैसे नहीं देने, ये भी आ जाए, पैसे नहीं देने, यहां से भी मैं बचा लूं, वहां से भी बचा लूं। इस फ्रीक्वेंसी के साथ में नहीं नहीं पैसे ग्रो होते हैं, ठीक है। आप फ्रीक्वेंसी पे वर्क करो, जो मैंने कहा है वो सारी चीजें आज से ही करना शुरू करो, और 21 दिन के बाद देखना आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो जितना आज है उससे कहीं ज्यादा होगा, ठीक है। हाँ जी सौम्या। Okay, ma'am. Yes. Next question is so I'm going to make it short, ma'am. It's very detailed and it has a lot of negative energy in that. So apparently there's a husband and wife, and there is an external force trying to disrupt the bond. So the wife is asking as to what she should do to stabilize the relationship, and also bless that person who is doing this to her family, and clean her karma and have an amazing relationship. Okay, so firstly take 100% responsibility of this, because every energy जो हम रेडिएट करते हैं वो हमारी लाइफ से आती है। कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, हो सकता है वो 2 जन्म पहले से हो, बिकॉज सोल इन्फॉर्मेशन कैरीज इन डिफरेंट लाइफ टाइम्स। सो द बेस्ट वे टू डू एज the best advice I can give to is to do Ho'oponopono. First you say that I take 100% responsibility of this situation in my life, and then you do your 108 times I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, to your subconscious mind, जिसमें वो डेटा स्टोर्ड है, जिसके कारण आज वो आपको सिचुएशन देखनी पड़ रही है। सो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू फॉर द सोल्यूशन दैट आई हैव नाउ। ओके, सो पहले से ही थैंक यू, आई लव यू। सो ये आप 108 टाइम्स, जो माला होती है हमारी, अगर आप हिंदू हो तो 108 की माला होती है, नहीं तो जिस भी तरीके से 108 आपको करना है, आई थिंक वो माला हर जगह अवेलेबल होती है, उससे आप 108 मॉर्निंग में और 108 इवनिंग में आप करना शुरू करो, आपको बहुत परफेक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा, और इस वाले चीज में सब बहुत खुश और एमिकेबल होंगे, ठीक है। हाँ जी Yeah, ma'am. Yes. Sorry, ma'am. Uh, Sorry, ma'am. I'm interrupting in between. I had this question yesterday about Ho'oponopono. I was trying to send the question to Soumya, but was unable to. So can you please explain it again, What is Ho'oponopono Ho'oponopono? practice? Okay, so basically Ho'oponopono No, is I a know what is Hawaiian. Ho'oponopono. I know that. You know it's a Sorry, I know. Hawaiian prayer, What? right? So I know. I Ho'oponopono just basic, so they just do this prayer, Ho'oponopono, the Hawaiians do it to clear the energy. So अगर हमारी लाइफ में कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ पे is not according to what it should be, I mean, it should be happy, it should be great health, it should be amazing relationship, it should be a flourishing career, business, whatever. So अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, that means कोई एनर्जी ऐसी है या कोई डेटा है which we are storing in our subconscious mind, and that data could have come from maybe this lifetime, past lifetime, पता नहीं कहाँ से, कई बार हमको याद भी नहीं होता, we don't know when we were 4 year old और हमने किसी का conversation सुना
उसके कारण एक डिस्ट्रस्ट हमारा लोगों के साथ हो गया, एंड जिसके कारण टुडे ऑल्सो वी आर नॉट एबल टू ट्रस्ट, वी हैव ट्रस्ट इश्यूज विद एवरीबडी. नाउ दैट डेटा वी स्टोर्ड बिकॉज ऑफ सम like very weird conversation जो आधे घंटे तक हमारी लाइफ में चल रहा था when we were maybe 3.5 or 4 year old, but that has got settled and it has made it roots in the subconscious mind, जिसके कारण बार बार हमें लोगों के साथ ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं. ठीक है, सो हमको पता नहीं होता है ये डेटा कौन सा है, मे बी दिस लाइफ टाइम, मे बी लास्ट लाइफ टाइम. सो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू इज कॉल्ड हवाईयन प्रेयर टू क्लियर दैट डेटा. मतलब उस डेटा की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके थैंक यू आई लव यू की एनर्जी करने में. अगर हमने फीलिंग चार्ट में देखा है तो उसे आप कोरिलेट कर पाओगे दैट ऑन टॉपमोस्ट पार्ट ऑफ द फीलिंग चार्ट वी हैव ग्रैटिट्यूड एंड देन लव, और लव के ऊपर एक एनलाइटनमेंट या निर्वाणा वो वाला बल्ब जला हुआ है. सो ये वही है दैट थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी हो गया पास्ट के लिए, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा आपका कलेक्टेड है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, एंड थैंक यू आई लव यू बोल के आप उसकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, एंड यू आर क्लियरिंग एनीथिंग नेगेटिव रिलेटेड टू द इशू दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ. है ना, जैसे इनका तो बहुत वैसे वाला इशू था, सेंसिटिव इशू है, तो ऐसे में होपोनोपोनो विल वर्क, बिकॉज होपोनोपोनो में क्या होता है कि इसमें अगर आप सपोज दिल से नहीं निकल रहा है थैंक यू आई लव यू, ऑब्वियसली दिल से नहीं निकलेगा ना, अगर हस्बैंड का ही सीइंग समवन एल्स, या घर में उस वजह से कलेश हो रहा है और बिल्कुल हस्बैंड घर में ध्यान नहीं दे रहा है और उनका ध्यान किसी और की तरफ है पूरे टाइम, और आपके घर में बच्चे हैं, आप पूरे मतलब इतने अच्छे से कर रहे हो, तो फिर दिल से नहीं निकलेगा थैंक यू आई लव यू. सो लेकिन इसमें मतलब डॉक्टर ह्यूलन ने बहुत, जिन्होंने जो लेके आए इस होपोनोपोनो कॉन्सेप्ट को वर्ल्ड में, उन्होंने ये बहुत क्लियरली बोला है कि अगर दिल से भी नहीं निकल रहा है आपका थैंक यू आई लव यू, तब भी मुंह से बोलो आउट लाउड. ठीक है, तो ये डेफिनेटली इफेक्ट करता है. जिस तरह के उन्होंने सारे वो जो मेंटल हॉस्पिटल का उनको चार्ज दिया था, और कैसे सारे की सारे 3,000 वो मतलब इतने अच्छे बन गए, आई थिंक से 12 लोग ऐसे थे जो बहुत बड़े आदमी नहीं बने आगे जाके उस मेंटल हॉस्पिटल के, मतलब वो नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, बाकी सब लोगों ने अपना नाम कमा लिया था उस मेंटल हॉस्पिटल में जहाँ पे डॉक्टर हुलेन का मतलब वो अपॉइंटेड हुए थे. वहां पे उन्होंने सारे क्रिमिनल्स के लिए, मतलब सारे मेंटल इल पेशेंट्स के लिए होपोनोपोनो किया था, एंड एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस, जबकि वो उनको जानते भी नहीं थे. यहाँ पे तो आप उनको जानते हो कम से कम, सो डेफिनेटली ये बहुत पावरफुल प्रेयर होती है. शुरू में आपको लगेगा कि थोड़ी गंदगी जिंदगी के ऊपर आ जाती है, तो थोड़ी प्रॉब्लम कुछ 3-4 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए बढ़ सकती हैं. ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि सोल्यूशन आना शुरू हो जाता है एकदम से, एंड द बेस्ट सोल्यूशन जो यूनिवर्स की रजा में होता है वो वाला मिल जाएगा. सो दैट्स व्हाट इट इज, एंड यू डोंट हैव टू मीन इट, यू कैन जस्ट अटर दिस वर्ड आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू. और ये हम सब कर सकते हैं रोज. मैं रोज करती हूँ इसको. 108 की माला तो मैं रोज ही करती हूँ. कभी कभी पैसे के लिए, कभी. हाँ जी Ma'am, for stuck money also we can do Ho'oponopono. yeah you must So we definitely have do. to put For anything you put can do, no? intention. For anything. Can we do First this you have to say, practice I for take our 100% responsibility for the money flow, for the cash flow. Cash flow नहीं आ रहा है इसलिए आपको करना है, या stuck money है. So I take 100% responsibility for the money in my life. And बस ये करके आप I'm sorry, please forgive me. So I'm sorry, please forgive me. आप अपने subconscious mind को बोल रहे हो, universe को, भगवान को, जो भी आप Jesus को बोल सकते हो, अल्लाह को बोल सकते हो. So thank you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you for making my life so beautiful. So ये चारों फ्रेज इकट्ठे आप बोलते रहो. आप देखना कि जिस भी एरिया के लिए आप कर रहे हो वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा. मेरी एक फ्रेंड थी, वो हाथ में पैसे लेके करती थी, हाथ में मतलब नोट जो होते हैं, जिस भी कंट्री में हम रहते हैं उनको लेके करती थी. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी. हाथ में पैसे होते थे, ठीक है, पैसों की गड्डी, मतलब इतनी मोटी गड्डी नहीं, बट हाँ 10-12 नोट लेके फिर वो करती थी. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. तो वो सारी एनर्जी उसमें जा जाके, एंड टुडे शी इज बिकम अ रिच गर्ल. सो इट्स क्वाइट पावरफुल, एंड यू कैन डू इट ऑन पीपल यू डोंट इवन नो अबाउट. मतलब आप जानते भी नहीं उनको, आप उनके लिए भी करते हो. डॉक्टर हुलेन ने जब ये कॉन्सेप्ट शुरू, ये प्रेयर पूरी दुनिया के सामने जब वो लेके आए थे, तो वो ये मेंटली इल जो पेशेंट्स थे मेंटल हॉस्पिटल में, उनको तो जानते नहीं थे ये.
सबकी सब छूट गए, सब बिल्कुल ठीक हो गए, मतलब छूट गए क्या, मतलब बिल्कुल ठीक हो गए 100%। इतना ज्यादा, इतना पावरफुल प्रेयर थी। या हाँ सौम्या, Okay, ma'am. Ma'am, I just Ma'am, excuse कैन me, वी ma'am, जस्ट कंटिन्यू, वी हैव सो मेनी, और हमको 7 बजे एंड करना खाली पड़ेगा बिकॉज हमारा इतना बच्चों का पूछना है। सेशन होता है। I know, खाली इतना पूछना है कि एवरी होनो में नाम लेना है क्या? मनी आई एम सॉरी के खाली पहली बार ही बोल के फिर आई हाँ एम मतलब सॉरी। पैसे के लिए ही 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी यूर टेकिंग, और इफ यू वांट टू टेक इट फॉर हेल्थ, आप हेल्थ की ले लीजिए। अगर आपका बच्चा सपोज कहीं और रहता है, यू नो डॉटर एंड सन, एंड देयर समथिंग गोइंग रॉन्ग इन देयर लाइफ, सो वो भी, अगर वो एक्सपीरियंस आपके मतलब आपके कानों में वो बात आई है या कुछ है ऐसा, लाइक यू कम टू नो दैट देयर समथिंग गोइंग रॉन्ग इन देयर life, so for that you can do it for strangers as well, like if there is a war going on in Siberia, so you can do it for them. If there's a war in Russia or anything that's gone wrong, say Japan mein earthquake aaya tha, so you can do Ho'oponopono for them, you know, like that. You can do it So for anyone and everyone for whatever reasons, whether you know them, whether you don't know them. So I know that for all of us, doing it for our own people is the first priority, but don't be like that. आज सुबह भी मैंने यही बोला था, मैं कहा आपकी जिंदगी तभी ठीक होगी जब हम लोगों के बारे में सोचेंगे हायर पर्पस के लिए, है मैम ना? 108 टाइम वो नाम लेना है, वो चीज नहीं, का आई एम मन सॉरी, मेरा। प्लीज फॉरगिव मी, ओके थैंक यू, आई लव यू, बस। ठीक है, नाम आप ओके, शुरू में आपने थैंक यू। बोल दिया ना, बोल हाँ दिया ना शुरू में, दैट आई टेक हाँ 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई हेल्थ, यू नो, एंड आई ओके रियली वॉन्ट टू एंजॉय द बेस्ट ऑफ हेल्थ। बस ये करके आप 108 टाइम्स करो और ये हो गया। और शाम को अगर हो थैंक सके तो दोबारा कर लेना, अगर ज्यादा इशू चल रहा है तो 2 बार करना पड़ेगा, और अगर एक ही बार करते हो, अगर टाइम नहीं है शाम को, तो एक ही बार कर लेना, लाइक दैट। थैंक यू मैम। हाँ जी okay, ma'am. सौम्या। Ma'am, you have already addressed this, but I'm going to put it out there so you can, if you feel like it reiterating. The person says he has slip disc and diabetes. He has overcome partially. How to overcome entirely is his question. But I think the magic book has said it all. One can do it. You know, like 369 practice आप कर सकते हो. Other than magics and miracles in health, which is chapter number 15. Magics and miracles in health वाला chapter है. उसमें past के लिए 5 and then 3 and 5 and 1. मतलब past के लिए 3 ऐसे moments लिखने हैं. That I'm very grateful when I went to Vaishno Devi, I could walk up and I enjoyed the best of health. I'm so grateful that I participated in the school function and then I practiced so much, you know, every day for a month. I'm so grateful that we went for a family vacation to, maybe आप जहाँ पे भी गए हो, से थाईलैंड की फैमिली वेकेशन, यू नो, टू थाईलैंड, एंड वी एंजॉयड सो मच। तो ये 3 मोमेंट्स हो गए पास्ट के लिए। अब 5 में करंट बॉडीली कंडीशंस आपकी कौन सी अच्छी काम कर रही है। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई ब्रेन बिकॉज आई कैन थिंक एंड माई ब्रेन इज सो हेल्दी। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई हार्ट बिकॉज वो इतने अच्छे से, इट्स सो स्ट्रॉन्ग। I'm so grateful to my blood because it is absolutely healthy, normal. I'm so grateful for my legs because I can walk easily with it. I'm so grateful for my digestive system because वो खाना digest कर लेता है। ये 5 present के हो गए, और एक future का आपको करना है ऐसे करके, that thank you that I have, जो भी, जैसे blood sugar level high है, thank you that all my blood parameters are normal and I am enjoying the best of health. तो ये फ्यूचर के लिए, और वो फ्यूचर के लिए 1 मिनट विजुलाइज भी करना है। पास्ट और प्रेजेंट का विजुलाइज नहीं करना है, फ्यूचर के लिए विजुलाइज करना है। ये प्रैक्टिस आप रोज करो, बिकॉज कहीं ना कहीं पास्ट में आपने गड्ढे इतने ज्यादा कर रखे हैं जिसके कारण आज हेल्थ सफर कर रहे हैं। तो पहले इसमें इसीलिए 3 पास्ट का करते हैं, 5 प्रेजेंट का एंड 1 फ्यूचर का। तो ये सारी चीजें अभी तक तो ठीक हो जानी चाहिए थी। तेजल का एक्सपीरियंस हमने सुना है, बहुत सारे लोगों का सुना है। कल ही लतिका ने शेयर किया है, नवदीप ने अपने हस्बैंड का शेयर किया था, इतना बड़ा हुआ थायराइड नॉर्मल हो गया, लतिका ने शेयर किया था। और इसीलिए ये सब अपने अपने प्रैक्टिसेस भी शेयर करते हैं कि ये हमने किया, यू नो, ये किया फिर ये हुआ, मतलब मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये प्रैक्टिस करी और फिर मेरे साथ ये रिजल्ट आया। सब लोग ऐसे शेयर करते हैं, बिकॉज जब तक कोई प्रैक्टिस नहीं बताता तो मैं ये क्वेश्चन मेरी तरफ से चला जाता है कि अच्छा ठीक है, आपको पहले ब्लड शुगर थी, अब आपकी नॉर्मल आई है, आपने ऐसा क्या क्या किया, ठीक है। तो वो आप मैजिक्स एंड मिरेकल्स करो। आप 369 कर सकते हो, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, 3 बार सुबह 6 और 9, एंड आई एम श्योर आपने वो यूट्यूब वीडियो देख लिया होगा। बार बार एक चीज रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। और प्लीज
वाटर एफर्मेशन करो। जितनी बार भी आप पानी पी रहे हो, पानी को मिनिमम 10 सेकंड के लिए आप बोलो, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ। 10 सेकेंड, सॉरी 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बहुत कम होते हैं। 10 सेकेंड पानी की ग्लास में जो भी पानी है, या वाटर बॉटल ले लो, जैसे मेरी ये वाटर बॉटल है, तो इसमें लिखा ही होता है दैट आई एम अ मनी मैग्नेट, आई रिसीव मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम विद ईज, आई एम इन अ परफेक्ट हेल्थ, यू नो, एंड आई एम एट माई आइडियल बॉडी वेट। तो इतनी सारी चीजें लिखी हुई है मेरी वाटर बॉटल के ऊपर, और ये हर 3 दिन में स्लिप में चेंज करती हूँ, और एग्जैक्टली ऐसी जिंदगी होती जा रही है जैसा एग्जैक्टली इस पे लिखा है। ठीक है, तो वाटर एफर्मेशन आप अपनी वाटर बॉटल पे डाल सकते हो, नहीं तो पानी, अगर ग्लास में आपने पानी लिया है तो उस पानी को आप 10 सेकेंड तक बोलो उसको, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, मेरे सारे पैरामीटर्स इतने हेल्दी हैं, मैं बहुत हेल्दी फील कर रही हूँ, मेरे मेरे अंदर हमेशा बहुत सारी एनर्जी रहती है, मेरे सारे बॉडी के सेल, सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतनी अच्छी हेल्थ देने के लिए। ठीक है, ये करके आप पानी पियो, और खाना खाने के पहले भी खाने को आप बोलो, उसमें वो एनर्जी दो, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ। तो ये सब आपको करना है। ठीक है, मैजिक्स एंड मिरेकल्स इन हेल्थ वाला मैजिक चैप्टर। और हो सकता है कि अगर ये क्वेश्चंस है और इतने टाइम में ठीक नहीं हो, इसका मतलब है मैजिक बुक के साथ कंसिस्टेंट नहीं हो। अपनी कंसिस्टेंसी पे वर्क करो, बिकॉज जिन जिन लोगों के साथ मिरेकल्स लाइफ में हो रहे हैं ना, वो सब कंसिस्टेंट है किताबों के साथ में। अब जिंदगी अच्छी भी चाहिए लेकिन काम भी नहीं करना है, ऐसे नहीं हो सकता है ना। अगर आपने प्रैक्टिसेस की होती, अगर 3 महीने भी आप प्रैक्टिस करते हो, तो ऐसा हो ही नहीं। मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के गारंटी के साथ साइन करके दे सकती हूँ कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। करके तो देखो। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं इस चीज को, तो फिर वी डोंट इवन डिजर्व दैट काइंड ऑफ, डोंट लुक फॉर एन इजी वे आउट ना, कि मैं एफर्मेशन कर लूं और ये हो जाए। कितनी मेहनत करते हैं आप। जो सुबह 10 ब्लेसिंग्स लिखते हो ना, वो मैं 100 लिखती हूँ। ठीक है, आप सोचो मुझे कितनी जल्दी उठना पड़ता है। ठीक है, प्लस अपने ग्रुप्स के लिए और एक एक मेंबर के लिए। ठीक है, वो मेरा ऑफिस लिटरली 12 घंटे में का मेरा ऑफिस है, और मेरा ऑफिस ये वाला नहीं है जो काम मैं अभी कर रही हूँ और जो मैं 6 से 7 कर रही हूँ। मेरा काम अलग है। ठीक है, तो मेरा प्रोफेशन बहुत अलग है इससे। तो काम मुझे वो करना पड़ता है। रात में मैं 9 बजे सो भी जाती हूँ। ठीक है, उसके अलावा सुबह जिम करती हूँ और शाम को भी वर्कआउट करती हूँ। ठीक है, प्लस शाम को मेरे एफर्मेशंस अलग होते हैं। किताब में रोज पढ़ती हूँ। मैंने अपने आप को प्रॉमिस कर रखा है कि मिनिमम 4 पेजेस किसी भी बुक के, बुक्स जो मैं पढ़ती रहती हूँ, वो मैं जरूर पढ़ूंगी। 4 पेज के से कम कभी भी नहीं। ठीक है, ये मिनिमम 4 पेजेस, ऑफकोर्स उससे ज्यादा ही होंगे ज्यादा, बट इस तरह से। सो इट इज लाइक अपने आप पे वर्क करते हैं ना हम सब। So this is how we have to grow and progress in life. I don't have a single moment to waste, you know, like, so आप प्लीज अपने आप पे वर्क कीजिए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये सुनना कि मैं इतने टाइम से ये कर रही हूँ। क्या कर रहे हो आप? की प्रॉब्लम अभी तक शुगर चेंज नहीं हुई है आपकी, वो चेंज नहीं हुई है ना, आप नहीं कर रहे हो। आप लिखवा लो, आप मैजिक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। हाँ जी सौम्या। Okay, ma'am. Next question is about regarding issues with landlord. Apparently, the couple is a plant parent, and the landlord is asking them to remove the plants from the premises, and they don't know how to handle that situation. How to go about it? So this is, you will have to write your affirmation that thank you universe that I have amazing, happy, healthy relationship with my landlord. और relationship वाला वो chapter number 3 जो हम कल करने वाले हैं, वो आप कीजिएगा। कल वाले सेशन में प्लीज लॉग इन होइए, मैं समझा दूंगी कल का। टुमारो वाला जो हमारा सेशन है, मैजिकल रिलेशनशिप्स। सो क्योंकि वो लैंडलॉर्ड है, आपका जिंदगी भर उनके साथ वो चलता रहेगा। So yeah, of course you will have to do that and you will see situation will change. वही 5 आपको gratitude लिखने पड़ेंगे। आप उनके घर में रहते हो, thank you so much to the landlord। और इशू देखो, क्या आपने इतने ज्यादा प्लान्स रखे हैं और उनमें से सीपेज होती रहती है, मतलब रीजन वो वाला भी देखना पड़ेगा ना। थोड़ी सी विजडम रखनी पड़ेगी हमको कि हम यू नो लाइक वी काइंड ऑफ कंट्रोल दैट। हो सकता है किसी और ने, आपके पड़ोसी ने लैंडलॉर्ड को कंप्लेन की कि उनके घर से हमेशा पानी गिरता रहता है ना। इसका मतलब है आप ठीक से वाइपर नहीं कर रहे हो। सो थोड़ी सी विजडम भी ठीक रखनी होती है। बट आप प्लीज लैंडलॉर्ड के लिए कल वाला चैप्टर आप देखिएगा, आपकी बिल्कुल रिश्ता ही बदल जाएगा उनके साथ में। हाँ जी, यस सौम्या। Yes, ma'am. Then next question is, ma'am, very a gratitude lady who had done a complete gratitude in 2012, ma'am.
Apparently she has lent a huge lump sum of money to two people, and both the people are not returning the money anymore. Although one person is in good terms with her, the other person is not at all in good terms and is denying the fact that he has received any money from her, and the money is being put to use for other purposes. So the question from the lady is, should I try to retrieve it or should I just let it go? What should I do? देखो, आपका पैसा है ना, वो अगर आप उसको वैसे भी ब्लेस करोगे उस पैसे को, तो वो वापस आपके पास आएगा। पैसा आने का रास्ता ढूंढ लेता है, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं आता है तो कहीं और से आ जाएगा। लेकिन आपके सपोज 4 लाख रुपीज है, 2 लाख एक को दिए, 2 लाख एक को दिए, वो आपके पास अपने आप वापस आ जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। जस्ट कि आपकी अपनी मनी फ्रीक्वेंसी को आप ठीक करो, और आप होपोनोपोनो कर सकते हो इसके लिए, मनी के लिए। अगर मनी के इतने लॉसेस हो रहे हैं कि लोग ले रहे हैं और वापस नहीं दे रहे हैं, या फिर आपके नॉर्मली भी लॉसेस होते रहते हैं, इसका मतलब है दैट पैसे आपसे निकल नहीं रहे हैं, तो पैसे जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। सिमिलरली पैसे आने का भी रास्ता ढूंढ लेते हैं जब आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी होती है तो। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। और प्लीज होपोनोपोनो 108 बार आप पैसे के लिए कीजिए। दैट थैंक यू, आई टेक ऑल द 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मनी, फॉर मनी इन एंड मनी आउट इन माई लाइफ। एंड आप उस एनर्जी को क्लीन करो, बिकॉज उस एनर्जी की वजह से हो सकता है आगे भी और पैसा नहीं आएगा और नुकसान चलता रहेगा। इसलिए एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दो, रोज करो 108 पैसे के लिए, ठीक है। आप देखना कि आपके घर में पैसे की बारिश होने लग जाएगी। हाँ जी। Okay, ma'am. So ma'am, in that advanced water technique, right? You have used, you show the glass bottle. Now they are asking if it should be a glass bottle or any other material. It can be any. Another- It can be steel, brass, plastic, glass, whatever. Water absorbs the word energy. Okay, it is not through transparency. Water just absorbs. मैंने इसलिए ऐसी वाली रखी हुई है because दिख जाता है मुझे। बिकॉज होता क्या है, सी हाउ टू यूज इट, आई टेल यू। तो इसमें ये पानी अभी खत्म हो जाएगा, जैसे अभी इतना ही पानी बचा हुआ है ना, बाकी मैंने सुबह से पी लिया। अब वो पानी जब नीचे हो जाएगा, सिर्फ आधा सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर बच जाता है अगर, है ना, तो मैं इसको दोबारा भर लेती हूँ। क्योंकि ये साइंस ने प्रूव किया हुआ है कि अगर एक ब्लेस्ड चावल का दाना भी आप बाकी के कुकर में जितना राइस है उसमें आप मिला देते हो, तो उस एक चावल के दाने की प्रॉपर्टीज बाकी 1 किलो चावल जो कुकर में है उसमें आ जाती है। सिमिलरली अगर इसमें सिर्फ 1 सेंटीमीटर पानी बचा हुआ है और इसमें फ्रेश आरओ का पानी मैं पूरी बॉटल में भर दूंगी, तो उस 1 सेंटीमीटर नीचे जो तली में पानी था वो पूरी बॉटल में मिक्स होके उसमें वही एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं ट्रांसपेरेंट बॉटल रखती हूँ ताकि मुझे दिख जाए कि कितना पानी बचा हुआ है। क्योंकि अगर आपकी ब्रास की बॉटल है या किसी और कलर की बॉटल है और आपको अंदर नहीं दिख रहा है, स्टील की या उसकी होगी तो नहीं दिखेगा ना अंदर, तो फिर उसमें ये हो जाएगा कहीं ऐसा नहीं हो पानी पूरा खत्म हो गया फिर आप दोबारा भर रहे हो। पानी ये खत्म नहीं होना चाहिए। और 3 दिन में आपको ये वाली स्लिप चेंज करनी चाहिए। जैसे अगर आपको अपना विजन इंप्रूव करना है तो आप उस पर लिख सकते हो दैट थैंक यू फॉर माई परफेक्ट विजन, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू फॉर माई वेरी हेल्दी बॉडी। तो ये तीनों चीजें आपके बॉडी के बारे में हो गई। और इसको आप मतलब ये वाला पेपर चिपका सकते हो। आप सिर्फ एक चीज भी लिख सकते हो, जैसे अगर आपका कोई बर्निंग डिजायर है, थैंक यू दैट आई हैव रिसीव्ड एन अमेजिंग जॉब, you know, that I really love, or thank you that I'm financially independent and I'm doing something that I really love, you know। अगर आपने ये लिखा है, या फिर अगर आपको अपना बिजनेस एक्सेलरेट करना है, so you can write thank you universe that my business is, you know, like accelerating day by day, या मेरे बिजनेस की इनकम बढ़ती जा रही है। थैंक यू यूनिवर्स दैट मेरे पास रोज एक क्लाइंट आता है और मुझे पैसे दे रहा है ना। इस तरह से जो भी चीज आपका चैलेंज चल रहा है, जैसे रिलेशनशिप अगर आपको किसी के साथ बेटर करनी है, देन यू कैन राइट थैंक यू यूनिवर्स दैट माई एंड सोज रिलेशनशिप इज सो अमेजिंग बेस्ड ऑन लव एंड रिस्पेक्ट, है ना, इस तरह करके। और 3 दिन में आपको ये स्लिप चेंज करनी होती है। आप चाहो तो सेम एफर्मेशन दोबारा लगा सकते हो या आप चेंज कर सकते हो। तो मैं तो 4-5 लिख देती हूँ उसमें, हर फील्ड में, है ना, बिकॉज 4 फील्ड्स होते हैं, रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी एंड करियर। तो ये 4 होते हैं, तो ये चारों का एक एक पॉइंट लिख देती हूँ मैं।
सो ये, और 3 दिन में पेपर चेंज हो जाता है। फिर नेक्स्ट उसमें कभी कभी जैसे इस बार ये लिखा हुआ है दैट आई एम अ मनी मैग्नेट, आई रिसीव मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम विद ईज, इस तरह से। सो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। और उस पानी को जब कम होने लग जाता है तो उसको दोबारा भरना होता है, खत्म नहीं करना होता पानी को। जैसे इसमें अगर बहुत कम हो जाएगा तो इसमें पानी दोबारा भर दिया जाएगा, ताकि वो थोड़ा सा जो पानी बचा था वो पूरे में मिक्स हो जाए, तो उसमें पूरे में पानी की प्रॉपर्टी दोबारा से आ जाएगी। इसलिए ट्रांसपेरेंट बॉटल या कांच की बॉटल में रखती हूँ, देयर इज नो अदर रीजन। आप प्लास्टिक की भी रख सकते हो अगर आर पार दिख रही है तो, क्योंकि उसमें दिखता रहेगा ना कि पानी पूरा खत्म तो नहीं हुआ है। खत्म अगर हो गया है तो आपको पर्ची दोबारा मतलब सेकेंड वो, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि आप पानी में स्लिप लगाओ। इट्स जस्ट दैट मैं बिजी बहुत रहती हूँ तो इसलिए मैंने ऐसे कर रखा है। बट अदरवाइज आप पानी में 10 सेकेंड की एफर्मेशन भी बोल सकते हो। जैसे अगर आपने ग्लास में पानी लिया, स्टील की ग्लास में लिया, तो 10 सेकेंड्स के लिए आप उस पानी में थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू फॉर नरिशिंग मी, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट बॉडी, थैंक यू दैट मेरे बाल इतने सुंदर होते जा रहे हैं, थैंक यू दैट मेरी स्किन इतनी यंग क्लीन क्लियर ग्लोइंग होती जा रही है, थैंक यू मेरे अंदर इतना इम्यूनिटी इतनी अच्छी है मेरी, थैंक यू सो मच कि मेरे पास पैसे की बारिश होती रहती है, थैंक यू कि मैं इतनी खुश रहती हूँ पूरे टाइम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू मेरे 100% अमेजिंग रिलेशनशिप्स हैं सबके साथ में, थैंक यू दैट मेरा बॉडी का वेट 52 kgs हो गया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं, मेरी स्किन पे भी ग्लो आ गया है। कुछ भी आपकी जो मर्जी आप लिख सकते हो, ठीक है। पानी पूरी आपका 100% एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और फिर वो पानी बिकम्स यू। और हमारा जो न्यूरो ट्रांसमिशन होता है, जो नर्वस सिस्टम है, जो सबकॉन्शियस माइंड को गवर्न करता है, वो पानी से ही चलता है। मतलब वाटर के मीडियम में ही वो मैसेजेस ट्रांसफॉर्म करता है ना। सो अब इस एनर्जी का पानी अगर आप पियोगे सो ऑब्वियसली आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी होती जाएगी। और यही चैप्टर नंबर 8 मैजिक बुक में भी हम पढ़ाते हैं, द मैजिक इंग्रेडिएंट्स। सो वो चैप्टर होगा, उस दिन ध्यान से सुनना, उस दिन हम ये सारी चीजें बताएंगे और साइंटिफिकली ये किस तरह, क्योंकि मेरा बहुत साइंस का दिमाग है लेकिन बहुत मैजिक में बिलीव करती हूँ मैं। सो मैं हर चीज को साइंटिफिकली कोरिलेट करके आपको बताती हूँ कि स्पिरिचुअली ये कैसे वर्क करती है आपकी बॉडी में। सो दिस इज हाउ इट इज। सो आप ये वाटर एफर्मेशन, फूड एफर्मेशन तो बिना बिना एफर्मेशन डाले, बिना उस तरह की एनर्जी डाले बिल्कुल पानी नहीं पीना है, खाना नहीं खाना है, चाय नहीं पीनी है। लोग चाय कॉफी को बोल बोल के कहाँ से कहाँ जिंदगी में पहुंच गए हैं, आपको पता है। मैं इतने सारे लोगों को जानती हूँ कि जो चाय कॉफी कॉफी पीना है तो उसको बोल देते हैं थैंक यू दैट मनी इज रेनिंग इन माई लाइफ एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी। ठीक है, ये कह के वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, क्योंकि वो लिक्विड होता है और लिक्विड आपकी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है 100%। सो या दैट वे। हाँ जी सौम्या। Ma'am, can we write on the glass like this? I have done like this. So is it okay? I mean, मैंने ग्लास पे ही सारे affirmations लिख लिए हैं. या whichever way it's okay, but इसको मिटाना पड़ेगा आपको फिर ना, because every So 3 days every you're supposed to change it. The efficacy becomes lesser and lesser energy. okay, thank you. हाँ जी सौम्या। Okay. Next question is about the significance of writing things on, with red pen on a yellow paper, and the importance of angel numbers like 11, 333. How are they all significant, ma'am, in the practices? See, when you talk about the color, there are some stronger colors for sure. ठीक है, वो अपने आप देखो, कलर का डेफिनेटली सिग्निफिकेंस होता है। आरती को याद है जब मेरी तबीयत बहुत खराब थी तो आरती बहुत रेकी करती हैं, इनको अपने मेडिटेशन में दिखा कि मैंने लाल कलर का धागा अपनी लेफ्ट रिस्ट में बांधा हुआ है, जिसके कारण मेरी एनर्जी ड्रेन होती जा रही है, क्योंकि मैं अपने हाथ पैरों में कुछ नहीं पहनती हूँ। लाइक आई एम टोटली अ ज्वेलरी फ्री पर्सन। कोई ना पैर में कोई ना कोई काला धागा, मुझे वैसे भी किसी ने बता दिया था ये काले धागे वागों के चक्कर में मत पड़ो, आप मत पहनो ये सब, ये वैसे भी 1 हफ्ते में इनकी एनर्जी खराब हो जाती है और ये नेगेटिव एनर्जी लोगों की नजरें एब्जॉर्ब कर करके ये आपकी बॉडी के अंदर वो डालने लग जाते हैं। तो आई डोंट वेयर एनीथिंग, बस एक डायमंड की रिंग है, वो भी मैंने अपने आप को गिफ्ट करी थी अपनी बर्थडे पे, वो मैंने पहनी हुई है। कानों में मैंने पर्ल्स पहने हुए हैं, ठीक है। उन पर्ल्स को भी किसी ने उसका भी ऑरा चेक कर लिया, उन्होंने कहा दे आर एब्सोल्युटली पॉजिटिव। इसका मतलब है कि कोई एनर्जी होती है ना, क्योंकि आरती तो मुझे मिली भी नहीं थी, उन्होंने मुझे कहा कि आपने अपने हाथ में कोई लाल कलर का धागा बांधा हुआ है क्या, बिकॉज वो बहुत वैसी किसी नेगेटिव एनर्जी में बांधा था, जिसने भी बांधा था उन्होंने किसी नेगेटिव एनर्जी में बांधा था। मतलब हो सकता है पंडित जी ने बांधा हो, उस वक्त वो अच्छी एनर्जी में नहीं होंगे, जो भी हो सकता है उस दिन उनका कुछ हुआ होगा। मतलब होता है ना, हर दिन एक जैसा नहीं होता। मैंने दूसरे दिन कहती हूँ निकाल के आप किसी प्लांट में डाल दो इसी वक्त। सो आई जस्ट डिड दैट। और वो दिवाली की पूजा में किसी ने बांधा था, उसके बाद मैं 10-15 दिन बीमार रही थी।
तो मैंने ये सब करना छोड़ दिया है। अब मैं कुछ पहनती नहीं हूँ, एक लाइक वो सब होता है, हीरा पन्ना, दिस दैट, नथिंग लाइक दैट, and this is how it was. So color definitely has some effect, no, on us. And red pen is supposed to be very, very powerful. Okay, green is related to money always, है ना? Green wallet, green this, green always related to money. So this our mentors had told us. So we continue doing that. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ब्लू पेन से लिखने से भी बहुत अच्छी हो रही है और आपका अलाइनमेंट यूनिवर्स के साथ बहुत अच्छा है, तो ब्लू पेन से ही एफर्मेशन लिख लिख के आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। जैसे मेरी जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, मैं सिर्फ ब्लू पेन यूज करती हूँ। ऑल्दो रखा होता है यहाँ पे, ग्रीन भी है, ये भी है, ग्रीन पेन है, ब्लू है, बट आई राइट विद ब्लू। जो मैं 100 ब्लेसिंग्स रोज लिखती हूँ सुबह, वो ब्लू से ही लिखती हूँ। बट उसकी वजह से लाइक लाइफ इज जस्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर, लीप्स एंड बाउंड्स, बाय डे एंड नाइट इट्स गेटिंग बेटर। सो दैट इज हाउ इट इज। सो प्लीज कलर का कोई नहीं है। हाँ, एंजल नंबर्स जो होते हैं, अगर आपको 444 दिख रहा है, अगर आपको 111 दिख रहा है, अगर 555 दिख रहा है, इसका मतलब है यू आर इन अलाइनमेंट एंड यूनिवर्स इज जस्ट सेइंग हेलो टू यू एंड आई लव यू टू यू। दैट्स अबाउट इट। अलाइनमेंट का मतलब ये होता है दैट यू आर इन अलाइनमेंट विद द एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, ओनली देन यू विल सी द एंजल नंबर्स। या Ma'am, my Ma'am, color is ma'am, generally I've seen where if we do thank you sun, thank you moon, till thank you Rahu and thank you Ketu. I have been trust me, ma'am, the alignment is every day everything is going well because Yeah. of this. Yeah. So always say definitely. thank you. This I always tell you in the morning, no? Thank you to all the 9 planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto, Sun and Moon, Rahu and Ketu, and 5 elements. यानी कि Earth, Water, Fire, Air and Space. ये 5 एलिमेंट होते हैं because हमारी body is made up of 5 elements. So इनको तो रोज थैंक यू करना बनता ही है ना? सो एवरी डे व्हेन यू से हाथ जोड़ के कि थैंक यू मुझे इतनी सुंदर जिंदगी देने के लिए, थैंक यू टू ऑल द 9 प्लैनेट्स, हमेशा मेरे अलाइज और मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बनने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे बहुत सारी ग्रोथ और खुशियां देने के लिए, मेरे पूरे परिवार को बहुत खुश रखने के लिए, कॉन्स्टेंटली मुझे गाइड करने के लिए, मेरे साथ मजे करने के लिए, मुझे नई नई अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, इन सब के लिए आपने थैंक यू करके, इन सबको तो थैंक यू करना ही, इन्हीं की वजह से आज जिंदगी है और हमारी सांसें चल रही हैं। ठीक है, अगर ये नहीं होंगे तो हमारा कुछ भी हमारा नहीं है, ये सब बोरोड है, ये गिफ्ट है हमारे लिए। सो इसलिए इनको तो रोज थैंक यू करना। ये तो मैं सुबह सेशन में आपको बताती हूँ, दिस शुड नॉट बी अ सिंगल डे जब सुबह उठ के आप इन 9 प्लैनेट्स को, सन एंड मून को, राहु के तो लाइक मून के 2 नोड्स होते हैं, तो उनको थैंक यू बोलना, और 5 एलिमेंट्स को थैंक यू। तो मैं कॉन्स्टिलेशन, गैलेक्सीज और स्टार्स को भी बोलती हूँ थैंक यू। जितने भी तारे होते हैं, दिखते नहीं है कई बार, कभी बादल होते हैं, कभी फॉग होता है, वो सब। सो इस तरह से, लेकिन सारे तारे जो होते हैं, जो सितारे होते हैं आसमान में, उनको भी थैंक यू बोलना। सारी गैलेक्सीज, कॉन्स्टिलेशंस जो हैं, उनको थैंक यू बोलना, है ना? सो सारे पूरे पूरे ब्रह्मांड को थैंक यू बोलेंगे तो ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे अंदर आएंगी। हाँ जी। Ma'am, this is the follow-up question to Yes, the Soumya. one. Hello. This is the follow-up question, ma'am, for that Muskan, the things you shared with Muskan. One person has done it for 24 days for 21 times, and she's asking what to do next. Continue doing it. Continue doing it, but don't be in lack. अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ वो पर्सन मेरी जिंदगी में, आपके लिए जो बना हुआ है ना, वो ऑलरेडी धरती पे है, अभी आपके आसपास है, वो दरवाजा यूनिवर्स का खुलना बचा हुआ है। जिस दिन आपको वो लैक मेंटालिटी चली जाएगी ना, और आप खुद से प्यार करने लग जाओगे, आप प्लीज इस पे वर्क करो, दैट आई एम लव, आई लव माई सेल्फ एंड लव ऑलवेज फाइंड्स मी। ये अफर्मेशन जो बताई थी, आप इसको रोज 21 बार लिखो। जिस दिन आपको खुद से प्यार हो गया ना, उस दिन आपसे बहुत सारा प्यार करने वाला इंसान आपकी जिंदगी में आ जाएगा। और अगर वो ऑलरेडी आपकी जिंदगी में है, पति के रूप में, बॉयफ्रेंड के रूप में, या जिस भी रूप में अभी होगा, मे बी कुलीग के फॉर्म में है, लेकिन हो सकता है वो आपका आगे जाके फियांसे बन जाए और फिर हस्बैंड बन जाए, तो जो भी है आपके लिए बना हुआ है ना, वो इंसान प्यार करने वाला, जब तक आप खुद अपने आप से प्यार नहीं करोगे, तब तक आपसे कोई प्यार नहीं करेगा। अपने सेल्फ लव पे फोकस करो। सेल्फ लव मतलब अपनी कंपनी को इतना पसंद करो। मैं आज रॉबिन शर्मा की किताब पढ़ रही थी सुबह, आज मेरी छुट्टी थी बाय द वे, तो बहुत टाइम मिला मुझे ये सब काम करने के लिए। सो उन्होंने यही कहा था, ऑलवेज स्पेंड सम टाइम इन सॉलिट्यूड।
एवरी डे अपने साथ वक्त बिताओ, अपने अंदर रिफ्लेक्ट करो, ये अपने डिटर्मिनेशंस को रीआइटरेट करो, अपने आप को बोलो, अपना इंजॉय करो, अपनी ड्रिंक इंजॉय करो अपने साथ में, ठीक है। मूवी देखो अपने साथ में, क्या पसंद आ रहा है, क्या अच्छा लग रहा है। कभी कभी अपने आप को कॉफी की ट्रीट दो, गो आउट टू हैव अ कॉफी विथ योरसेल्फ, देयर इज नोबडी एल्स, ओके। और जब वहां पे आप अपने आप को कॉफी ट्रीट कर रहे हो, सपोज यू गॉन टू स्टारबक्स फॉर अ कॉफी और समथिंग, सो व्हेन यू गॉन टू स्टारबक्स, सो आप अपने आप को ट्रीट दे रहे हो, ठीक है। If you want to buy yourself maybe a lipstick, maybe some small thing, maybe just a lip balm, gift yourself something sometimes, okay। And always look in the mirror and say, mirror work करो इसके लिए, that I really love you, जो भी आपका नाम है, अगर आपका नाम है सौम्या तो आप बोलोगे I love you सौम्या so much, you're the best in the world, I mean I can really see the way you're so diligent, इतने अच्छे आप लोगों के दोस्त हो, आपका दिल इतना सुंदर है, आप इतना अच्छा सोचते हो लोगों के लिए, आप अमेजिंग हो। एंड LRAG प्रैक्टिस करो, आई लव यू सौम्या फॉर हु यू आर एंड आई ऑल्सो लव यू फॉर हु यू आर नॉट, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सौम्या, एंड देन यू हैव टू से आई एक्सेप्ट यू सौम्या जस्ट द वे यू आर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। LRAG इज L लव, R रिस्पेक्ट, A एक्सेप्ट एंड G ग्रेटफुल। अपने आप को आप शीशे में देख के बोल रहे हो दैट यू आर अमेजिंग, यू आर यू नो लाइक यूर अ फैबुलस पर्सन, योर आईज आर सो ब्यूटिफुल, आई जस्ट लव योर क्लीन क्लियर कॉम्प्लेक्शन विच इज सो गुड, आई लव योर ब्यूटिफुल हेयर, योर स्माइल तो कमाल की है, यू नो आप इतना इतना अच्छा आपका दिल है, आपका डिसिप्लिन कितना अच्छा, आप हमेशा ये सोचते हो मैं बेटर इंसान कैसे बन सकती हूँ, आई रियली लव यू सौम्या, है ना। इस तरह शीशे में आप देख के बोलो। और ये जो एफर्मेशन मैंने बताई है, आई एम लव, आई लव माई सेल्फ एंड लव ऑलवेज फाइंड्स मी। अगर आप रोज अपने सबकॉन्शियस को ये यकीन दिला रहे हो दैट मैं खुद एक प्यार हूँ, ठीक है, और आई एम लव, और मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, और लव हमेशा मतलब मुझे हर जगह प्यार मिलता है, यू नो लव ऑलवेज फाइंड्स मी। सो अपने आप जो इंसान जो क्रेजी अबाउट यू होगा ना, वो अपने आप आ जाएगा, एंड दैट पर्सन विल मेक यू फील सो लव्ड एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ, यू नो। एंड इट इज टिल द टाइम वो लैक की मेंटालिटी रहेगी, या जब तक आपको खुद से प्यार नहीं होता तो प्यार करने वाले नहीं आते, होते हैं लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे प्यार। जिस दिन आपको अपने आप से प्यार हो जाता है, उस दिन आपके जो पार्टनर्स होते हैं वो एक्सप्रेस करने लग जाएंगे बहुत सारा प्यार। आप हमेशा देखना, जब खुद से प्यार होता है ना, तो लोग बहुत एक्सप्रेस करते हैं प्यार, है ना। आप नहीं भी करोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्यार, बहुत केयर लोगों की, और बहुत प्यार मिलता है, बहुत कंसर्न मिलती है, आप ठीक हो, सब है, ये इस तरह से ये अपने आप होता है, ये एनर्जी होती है। तो जिस एनर्जी के साथ हम रहते हैं और जो हमारे अंदर होती है, हमें उसकी मिरर इमेज अपने एनवायरनमेंट में मिलती है ना। तो आपसे प्यार करने वाला बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में आने वाला है, और आप जो भी हैं, गॉड ब्लेस यू, यू नो, एंड यू विल वेरी सून हैव अ परफेक्ट पार्टनर जो आपको खूब लव्ड फील कराएगा। हाँ जी Ma'am, one more. I mean, there are a lot of questions. This one you looks take interesting. something which are very generic that are applicable to One generic question, Yeah, ma'am. Acha, हाँ ठीक है, दी, you ask. Acha, let me ask one, huh? So, ma'am, this person asks us that can I do 21-day practice for two purpose in one day? एक बात के लिए दो बार, दो पूरी की पूरी प्रैक्टिसेस क्या हम लोग कर सकते हैं? Just इस suppose we बात have का two मैंने desires. जवाब परसों दिया था, जब मैंने वो पाइपलाइन वाला एग्जाम्पल दिया था। आप एक बार में एक ही चीज के लिए, अगर आप 21 डेज कर रहे हो तो ये किसी स्पेसिफिक चीज के लिए है ना, ये आप क्वांटम जंप करने के लिए कर रहे हो, मतलब आपका कोई एरिया लाइफ का है जिसमें आपको बहुत क्विक रिजल्ट देखना है ना। सपोज आपको किसी कंट्री का वीजा चाहिए एज एन एग्जाम्पल, तो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपने सोचा कि ठीक है मैं 21 बार 21 दिन तक इसको लिखूंगी, ठीक है, दैट थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग माई वीजा टू सो एंड सो कंट्री, है ना, विद ईज, that thank you again, फिर एक ही सेंटेंस लिख रहे हो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी माय वीजा, यू नो लाइक विद सो मच ईज टू दिस कंट्री। इस तरह आपने 21 बार आज लिखा, और आप 21 दिन तक लगातार लिखोगे उसको, बस उसी पे फोकस करो, ठीक है। जब 21 दिन का आपका हो जाएगा, उसमें 1-2 दिन गैप का छोड़ के आप अपना मतलब दूसरा वाला जो आपका डिजायर है उस पे आप वर्क कर सकते हो। सो अभी आराम आराम से, लाइफ इज लॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी अगर आपने 21 बार 21 दिन तक एक पर्टिकुलर चीज लिखी, सपोज, उससे आपकी और बहुत सारी प्रेयर्स आंसर हो जाएंगी, बिकॉज एक ही पाइप से खुशियां निकलती हैं।
उस पाइप की सफाइयां हो चुकी हैं, और आप लगातार रोज जब 21 बार 21 दिन तक लिख रहे हो तो उस पाइप की सफाइयां हुई है, और उसी पाइप में से रिलेशनशिप भी आ रही है, उसी में से पैसा आ रहा है, उसी में से हेल्थ आ रही है, और उसी में से आपका करियर भी आ रहा है, उसी में से पार्टनर भी आ रहा है। ठीक है, उसी पाइप में से आ रहा है आपकी जिंदगी, दैट्स द पाइप ऑफ योर लाइफ. सो व्हेन यू डूइंग इट फॉर वन थिंग, यू आर एनी हाउ क्लीनिंग द इंटरनल्स ऑफ दैट पाइप नाउ, एंड नाउ यू विल स्टार्ट रिसीविंग द फ्री फ्लो ऑफ वाटर. ठीक है, इसीलिए 2 बार 2 चीजों के लिए हम कभी भी नहीं करते. 555 टेक्निक में हम 2 चीजों के लिए नहीं करते, एक सेंटेंस, दूसरी आप 5 दिन के बाद में कभी कर लेना ऐसे. एंड मैम ठीक है, अगर मान लीजिए 555 भी कर रहे हैं और 11 भी कर रहे हैं तो, एंड 21, मतलब तीनों चीजें हम लोग अलग अलग चीज के लिए कर रहे हैं, क्या आप वो कर सकते हैं? नहीं, नॉट एट ऑल. नहीं. Yeah, but नहीं. that's a question again. So हम्म. yes, this one, another very important, ma'am. This lady asks us, when at night I do magic rock practice and sleep, my husband snores a lot. I get up and shake him, then sleep again. So should I do the rock practice again? Magic rock दोबारा करना पड़ेगा अगर नींद खुल गई है किसी कारण से तो? As long as you're not irritated. मैजिक रॉक प्रैक्टिस करने के बाद आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, क्योंकि आपने बहुत सारा ग्रैटिट्यूड अपनी लाइफ से रेडिएट किया हुआ होता है उसके बाद. लेकिन अगर आपको उनकी स्नोरिंग से खुंदक आ रही है, ठीक है, इरिटेशन, तो इसका मतलब है आपकी एनर्जी दोबारा खराब हो गई है और मैजिक रॉक प्रैक्टिस वेस्ट हो जाएगी, बिकॉज आप उस नेगेटिव एनर्जी के साथ सोगे. सो इसीलिए ठीक है, मैजिक रॉक कर लिया, और रोज तो ऐसा नहीं होता होगा तो अगर मैजिक रॉक प्रैक्टिस कर ली और अगर उनकी स्नोरिंग में आपको गुस्सा आ रहा है, फिर आप उनको हिला रहे हो कि क्या कर रहे हो, आवाज बहुत आ रही है, इस तरह से, तो जब दोबारा सो जाएंगे तब आप ये, आपको मतलब चाहे आप रॉक ना भी, क्योंकि मैजिक रॉक आप कर चुके हो पत्थर पकड़ के, है ना, तो फिर आप वैसे ही ग्रैटिट्यूड करके आप सो सकते हो दोबारा से, एनर्जी चेंज करके सोना. इरिटेशन की एनर्जी में सोगे तो पूरी रात सबकॉन्शियस में इरिटेशन बढ़ेगी, और अगले दिन आपको सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको और इरिटेट करेंगे. मैम प्लीज एक्सप्लेन सॉरी टू 11 इंटरप्ट यू, बट अब बच्चों का सेशन शुरू हो जाएगा तो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा वाइंड अप. हाँ, आपका वही ना 7:01 तो ऑलरेडी हो चुके हैं. आई थिंक वील जस्ट टेक द लास्ट नो क्वेश्चन. वरीज मैम. मैम प्लीज 11 Last 11 question, it's एक्सप्लेन an करें. umbrella question, ma'am. हम्म. बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है ये. How to improve the physical and physiological health of their children? Like उनके बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे हैं. No matter what affirmations do or the practice they do, their children are getting sick. So what to do? How Every to day write 5 blessings. That's what I do. Every day write 5 blessing for the, मतलब एक बच्चे के लिए 5, दूसरे बच्चे के लिए 5. सो एक बच्चे के लिए जैसे अब प्रिया के बच्चों का नाम, जैसे अर्पित का नाम, तो अर्पित हमारा बच्चा है एक, ठीक है, जैसे उसके लिए हम लिख रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं that thank you universe that Arpit is always happy and healthy. Thank you universe that Arpit is always enjoying the best of his health. Thank you universe that Arpit's cells, organs, everything are functioning so healthy. Thank you that Arpit is, focused on his studies and has very good habits. Thank you universe that Arpit is so responsible. So आपने ये 5 चीजें लिख दी, अब आप लिखते रहो इनको, ठीक है, और बहुत ज्यादा उसकी हेल्थ को डिस्कस मत करो लोगों से, बिकॉज फिर वो प्रॉब्लम आ जाती है. अगर आपने 10 दिन ये एफर्मेशंस लिख ली अपने बच्चे के लिए और उसके बाद आपने फिर डिस्कस करना शुरू कर दिया किसी और से, ये तो बीमार ही पड़ा रहता है, ये ऐसे ही होता है, वैसे ही होता है, फिर आपके हस्बैंड है, आपने उनको भी बताया, फिर आपने अपनी मम्मा से बात की, उनको भी आप यही बता रहे हो, ये तो बीमार ही रहता है पूरे टाइम, खाना भी नहीं खाता, रात में बहुत लेट सोता है, ये गड़बड़ मम्मियां करती हैं. दैट दे एम्पलीफाई द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द चाइल्ड टू मच, उनके दिमाग में चलता रहता है, या फिर आप किसी और के साथ ये डिस्कस करते हो. ठीक है, डिस्कस आप सिर्फ अपने गुरु के साथ कर सकते हो और अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हो, इनके अलावा आपको किसी का, और वो भी इसलिए क्योंकि वो आपको सोल्यूशन देंगे इस चीज का. अगर जब कभी ऐसा है, जैसे अगर आप सेशन में मुझसे पूछ रहे हो दैट आई वांट द बेस्ट हेल्थ फॉर माय चाइल्ड, ठीक है, तो फिर हम आपको बताएंगे, तो उसमें तो आपको ये क्वेश्चन भी आप ऐसे ये पूछने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे करता है, फिर वो वैसे करता है, फिर उसको सर्दी जुकाम हो जाता है, कभी रात में सोता ही नहीं है, इतना बताने की जरूरत नहीं होती, और मुझे ये इन्फॉर्मेशन कंज्यूम भी नहीं करनी है ना. नहीं तो वो सब हमारे साथ भी वैसे, सबके अगर 100 लोग सुन रहे हैं तो 100 लोग के साथ ऐसा होने लग जाएगा.
इसीलिए आपको बोलना है कि मुझे अपने बच्चे को ऐसी हेल्थ देनी है कि वो खूब खुश रहे, खूब एंजॉय करे, क्लास में फोकस करे और उसकी टीचर्स उसकी खूब तारीफ करें और बहुत अच्छा इंसान बने। मुझे ऐसा चाहिए अपना बच्चा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपने कितनी पॉजिटिवली पूछा है ना, दैट मेरे बच्चे की हेल्थ कैसे हो सकती है, क्या करूं मैं कि मेरा बच्चा बहुत हेल्दी हो जाए। मैं समझ गई कि आपके बच्चे का पहले इसका ऑपोजिट होगा, इसीलिए आप ये पूछ रहे हो ना। ये तो अंडरस्टूड। जैसे अगर मैं भी अपने मेंटोर से पूछती हूँ तो मैं ऐसे ही पूछती हूँ दैट मुझे बिलियनर बनना है, मैं कैसे बनूं। मैं ये नहीं पूछती अभी मेरा पैसा चोरी हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, ऐसे नहीं। मुझे ये चाहिए, मुझे 52 kg वेट का होना है, तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी कि वाटर एफर्मेशन करो, माइंडफुली खाना पीना करो। वो मैंने आपको टिप्स भी दिए थे, वजन कैसे आप अपना अच्छे हेल्दी तरीके से घटा सकते हो, कल वाले सेशन में बताया था। तो वो सारी चीजें भी करो और अपने ड्रीम लिस्ट में लिख लो, जो हम 10 की ड्रीम लिस्ट बनाते हैं चैप्टर नंबर 13 में, दैट थैंक यू दैट आई एम एट माई आइडियल बॉडी वेट ऑफ 52 kgs, है जो भी आपका 62 kgs है, जो भी आपका आइडियल बॉडी वेट है, एंड आई एम गेटिंग सो मच एप्रिसिएशन फ्रॉम एवरीवन एंड माई स्किन इज ऑल्सो लुकिंग सो गुड। क्योंकि होता क्या है कि नॉर्मली जब लोग 20-20 किलो कम कर लेते हैं तो सब बोलते हैं कि अरे तुम तो बीमार ही लग रहे हो, तुम्हारा इतना वेट कम हो गया, ऐसे बीमार बीमार लग रहे हो, आंखों के नीचे गड्ढे भी पड़ गए, स्किन कैसी हो गई, ऐसे लूज हो गई, है ना। तो उन सब चीजों को हटाने के लिए एफर्मेशन अपनी अच्छे से करो। थैंक यू दैट आई एम एट माई आइडियल बॉडी वेट ऑफ सो एंड सो किलोज एंड माई स्किन इज रेडिएटिंग, ग्लोइंग एंड आई फील सो फुल ऑफ एनर्जी एंड एवरीबडी इज कॉम्प्लीमेंटिंग मी। तो अब वो नहीं होगा कि लोग बोलेंगे कि हो 20 किलो करने के बाद कैसी हो गई है ना, ये सब नहीं होगा, क्योंकि आपकी एफर्मेशन इस तरह से थी कि लोग कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। मेरी स्किन पे और ग्लो आ गया पहले से भी ज्यादा, मेरे बाल इतने सुंदर लग रहे हैं, मेरी बॉडी इतनी टोन लग रही है, मजा आ गया कि मैंने इतना बढ़िया मतलब अपना आइडियल बॉडी वेट गेन कर लिया है। तो इस तरह से आप पूछोगे, इस तरह सोचोगे तो अपने आप होगा। अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, इसका मतलब है कि आपके मन में इनसिक्योरिटी है बच्चे की हेल्थ को लेके। ठीक है, तो इससे ऑपोजिट आप करना शुरू कर दो। एंड आई एम सॉरी, आई थिंक हमको लास्ट वो अभी बच्चों का सेशन शुरू होने वाला है 7:15 से, तो हम और कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। एंड थैंक यू प्रिया एंड सौम्या सो मच Thank you so much, ma'am. Thank you so much Thank for you. doing this. Thank you, ma'am. Thank you. See you tomorrow at 6 o'clock. Bye. Yes, जिनको भी ma'am. रिलेशनशिप वाला चल Thank रहा है, you, tomorrow ma'am. morning is Thank you, Dipti. Thanks. So much, ma'am. Thank you so Thank you, much. ma'am. Thank you so क्या Thank you, खूब ma'am. लगती हो, Thank you so हाँ, much. बड़ी Thank you, ma'am. सुंदर आपके लिए दिखती भी हो। बड़ी सुंदर Thank दिखती हो। अपनी Thank you, अपनी ma'am. बहनों के Thank साथ you. एंजॉय कर रही हैं you, सरिता जी। Ritik. Thank you. Yes, I'm enjoying Raipur. Yeah, how cool is that? Thank you so much. Have a great evening. Bye Thank bye. you, You're welcome. Thank you, ma'am. Thank Thank you you. so much. Thank you.